मैं भी दे दूंगी ये सेशन, वहां से आपको हेल्प हो जाएगा. ओके. ठीक है. So this is exercise 2.3 that we are discussing here, and the first question is saying I need to determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor. So first of all, we'll understand what if I say one number is a factor of another number. What is the condition there? If I say 3 is a factor of 27, factor of 27, that means 27 is a multiple of 3, right? Yes, ma'am. And if in case I divide 27 by 3, I'll get 9s are 27, right? I subtract, I'll get a 0. So whenever a factor is divided by its multiple, then the remainder is 0, right? है ना लिपिका बेटा? So in this question also, when they say that we need to check if x plus 1 is a factor of this given polynomial, this expression here, that means they want us to check that if I divide x plus 1 with this given expression, is the remainder 0? If the remainder is 0, yes, x plus 1 is a factor of given polynomial of x. If not, if it is any non-zero number, be it positive or negative, if it is any non-zero number, then x plus 1 is not a factor of given polynomial. Right, beta? Yes. Now to do this, it is the remainder theorem which is used, and if the remainder is 0, that means it is the factor, so it becomes the factor theorem. So in your syllabus this year, remainder theorem is cut. It is only the factor theorem that we are doing, but it is making no difference because remainder theorem का conclusion ही factor theorem. I'll be precise again. अगर remainder आपका 0 है, तो yes, it is a factor. Okay. And अगर remainder non-zero है, कुछ भी, anything non-zero, तो फिर no, it is not a factor. Right बेटा जी or not? तो अगर मैं कहूँ कि ये factor theorem है, तो ये remainder theorem से ही आ रही है ना? Right? So if even remainder theorem is not in syllabus this year, but we'll have to learn it. Got it बेटा? Yes, ma'am. तो factor theorem कहती है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं, वो हमें पता करना है. तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? वी फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हाउ टू फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल? दैट मींस इफ दिस x plus 1 is completely 0, this expression itself is equals to 0, then what is the value of x here? What is the value of x here? You transpose this plus 1 to the other side, right? And that becomes x is equals to minus 1. So x minus 1, right, is the 0 of this polynomial, right? Yes, ma'am. In other ways, you can call 0 as the solution also. And this is the solution of this expression. No, when you put it equals to 0 and you solve it for x, that means that is the solution of x. So solution of x is the 0 of that polynomial, right? Yes. Because you have put that equation, that expression equals to 0 and solved. So this is what, this is x equals to minus 1 from here. And now I'll put this x equals to minus 1 in this expression that I have got. How to do this now? This is x cube. This is my polynomial of x cube plus x square plus x plus 1. Now I'll put polynomial of minus 1 here. Now this is minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 plus 1. Got it, beta ji, or not? Is there any doubt in this? I have just replaced all the x's with minus 1. Right? Now I'll very carefully solve. 1 ka cube is 1 only. 1 into 1 into 1 is 1 only. Right? Yes, ma'am, negative 1 aayega. Yes, because minus ka power is odd. Very good, Lipika. Good. Okay, now this is plus. Positive 1, very good. 1 ka square is 1 only, and this minus to the power even is positive. Very good. Now what? Negative plus and minus. Very good. And then positive 1. Positive, negative have cut each other. Positive, negative have cut each other. You got a 0. And this is what, beta? This is the remainder now. Right? Yes, ma'am. So when you put the 0 of g of x, in the p of x and you get a 0, that means 0 is the remainder.
or whatever you get is the remainder. If even you would have got 4, 3, 2, those all should be the remainders then, right? Yes, ma'am. So now 0 is the remainder. Now what did I tell you when we started this question, that if the remainder is 0, what will be the concluding statement here? That the polynomial, no, X plus 1 is is a a factor of is a factor of the expression. right of the given polynomial. या तो given polynomial लिख लो या p of x लिख लो, क्योंकि हमने इसे p of x इधर यूज किया है. Yes, ma'am. Right? Clear? Any Yes. doubt in this? This is what we call as factor theorem. If the remainder is 0, yes, it is a factor. If remainder is non-zero, it is not a factor. Clear, beta? Yes, ma'am. Okay. Now, if you want to look at this question once again, when you are doing, if you are going anyway out wrong, like if you're not getting your answer correctly, so you can go to that YouTube video, check this concept again and do it again. Okay. So now I'll be discussing one more part. Let's see this fourth one. No, ये भयानक लग रहा होगा ना, लिपिका? Typical सा, है ना, क्योंकि जहां रूट आ जाते हैं वहां बच्चे बिना बात के डर जाते हैं, और है कुछ भी नहीं, सिंपल. हम यही चेक कर रहे हैं फिर से x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. तो आप मुझे बताओ पहले क्या करना चाहिए? मैम 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब x इक्वल्स टू -1. वेरी गुड, आपने 0 निकाल दिया तो आपको 0 मिल गया इस इक्वेशन का. गुड. अभी इसके बाद क्या करें? वैल्यूज में जो हमको वैल्यू मिली है उसको एक्सप्रेशन में पुट करना है. सो -1 क्यूब माइनस, मैं एक बार वो Negative पूरा 1. एक्सप्रेशन लिख दूं, पॉलिनोमियल लिख दूं पहले एक बार. yes, आप डाल दे इसकी वैल्यूज को यहाँ पे. -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस -1 square. प्लस √2 इंटू -1. बेटा देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं कैलकुलेशन में, जहाँ x में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं पुट करेंगे -1, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो उसमें से -1 कर देंगे, which will be all wrong. Why? Because this x is actually getting multiplied with this bracket, Yes, both ma'am. the things. तो इसीलिए I need to put this into the bracket to show that this is multiplied by both. Yes, ma'am. राइट. यहाँ सिर्फ एक कैलकुलेशन एरर है जो मोस्ट कॉमन है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन का. +√2. राइट. अभी क्या करें इसको? -1 राइट. +1. बेटा ये +1 हो गया, लेकिन ये तो माइनस है ना, -1 है ना, तो -1 -2 अभी मैं आपको एक बात -2 समझाती हूँ, ध्यान से सुनो और समझो. ये जो -1 है, अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ क्या? -1 टाइम्स 2 + √2 ऐसा Yes. लिख सकती हूँ. ये माइनस ये रहा, राइट, Yes, और ये माइनस ये रहा, राइट और नॉट, लिख सकती हूँ yes, ना. ma'am. हम ऐसे x को आगे भी तो लिख सकते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा Yes. है ना. तो अब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये स्टेटमेंट अनचेंज्ड यहाँ पर आ जाएगी. गॉट इट और नॉट बेटा? Got it. तो एक्चुअली वो माइनस क्योंकि पीछे लग रहा है ना, इसीलिए कैलकुलेशन में पहले ध्यान में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे आगे रख के सोचोगे फिर इजीली हो जाएगा. तो ये प्लस हो गया और ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव का पॉजिटिव यूं का यूं लिखना है, 2 + √2. आप चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ठीक है मैम. क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, राइट. Yes, ma'am. नाउ इज दिस +√2 आई नीड टू राइट. Yes. ठीक है. अब ये -1 और +2 दोनों कैंसिल हो गए. आउट हो जाएगा. And then √2 + √2 is 2. √2 + √2 is not 2 बेटा, √2 into √2 is 2. 2. यहाँ पर तो दोनों ऐड हो रहे हैं. इट्स लाइक दिस इज 1 एप्पल, ये एप्पल है, दिस इज 1 एप्पल, दिस इज 1 एप्पल, तो 1 एप्पल + 1 एप्पल इज 2 एप्पल्स, सो दिस इज 2 एप्पल्स, राइट बेटा, Yes, ma'am. Got it. है ना. सो द आंसर इज 2√2. दैट मीन्स what will be the concluding statement? The x + 1 is a factor of the given polynomial or px. Have you got a 0 remainder here?
No, ma'am. Sorry. So So फिर x plus 1 is not a factor. yes, exactly. X plus 1 is not a factor of given Polynomial. polynomial of x या p of x. Right, beta? Yes, ma'am. Okay. Now, another question, they are saying use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of px or in each of the following cases. So again, we need to find 0 of this equation and put it into this one. Yes, ma'am. If you get Ma'am, this equals to 0, yes, bacha. ma'am, sometimes this is get confused कि g of x and p of x में तो difference क्या है and then उन दोनों का like उन दोनों का value क्या है, like what is the value of g of x अगर p of x हमको दिया हुआ है तो बेटा मतलब एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को स्ट्रेट करने के तरीके हैं रचे। अब आप एक वेरिएबल को अगर p ऑफ x कह चुके हो, दूसरा पॉलिनोमियल भी x में ही है, तो आप इसे पॉलिनोमियल ऑफ x लिखोगे तो फिर तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी ना दोनों के अंदर। तो ऐसे ही उन्हें असाइन कर दिए डिफरेंट टर्म्स। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x, दिस इज g ऑफ x, p ऑफ x, ऐसा अलग अलग वेरिएबल दे दिया है बेटा। That's it, right? So this is एक अलग polynomial, this is another polynomial, and polynomials are different expressions, right? So now when they say that आपको ये पता करना है कि this g of x is a factor of this p of x or not, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप इसका जीरो फाइंड करेंगे, फाइंड आउट करके which will be -1 again and then उसका वैल्यू पुट इन करना है पॉलिनोमियल में। अगर वैल्यू 0 आ गया तो कंक्लूजन विल बी यस इट इज अ फैक्टर, अगर नॉन जीरो आया नॉट अ फैक्टर। right, got it? No, so what's the difference between first question and second question? दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम इन्होंने जो वैल्यू है लाइक द वैल्यू दैट दे हैव गिवन वी नीड टू जिसका हमको 0 फाइंड आउट करना है दैट्स डिफरेंट इन ईच केस एंड उसमें इट्स कॉमन। हाँ, एक्चुअली क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ना स्टेट कर दिया है कि मेथड क्या है, आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है, वहां आप मेथड स्टेट नहीं किया है कि किस मेथड से करना है। तो क्या और भी कोई मेथड हो सकता है इसे करने का? द आंसर इज यस। द आंसर इज रिमाइंडर थ्योरम का ही कंक्लूजन तो फैक्टर थ्योरम है बेटा, वो थ्योरम ही वही है। तो कंक्लूजन करने का एक और तरीका हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ द मार्क्स जो आएगा। इफ इट इज अ 1 और 2 मार्कर, आप फैक्टर थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। इफ इट इज 3 और 4 मार्कर, यही सेम क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। If it is a 3 or 4 markers, then the method opted for this is long division method. Do you remember long division method? Yes, ma'am. चलो करके देखते हैं। x plus 1 को will divide with the given polynomial of x g cube plus x square plus x plus 1. x cube plus x square plus x plus 1, right? Yes, ma'am. और हम अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन करते हो तो आप क्या करते हो मुझे बताओ। हम पहले तो एक एक टर्म पे फोकस करना है, सो वी डू इट लाइक x को लिया, सो x व्हाट टाइम्स x विल गिव अस x क्यूब। गुड, हाँ मैं समझ गई। तो आप लॉजिकली बिल्ड करते हो रिलेशनशिप बिटवीन इन बोथ द थिंग्स कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? अगर मैं कहूँ सेफेस्ट प्ले करो, वही लॉजिक मैथमेटिकली यहाँ कैलकुलेट कर लो, एक्स क्यूब और एक्स को डिवाइड करके, दिस फर्स्ट टर्म डिवाइड विद दिस फर्स्ट टर्म ऑलवेज, व्हाटएवर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर पॉलिनोमियल किसी भी स्टेट पे, तो आप उसी के फर्स्ट टर्म को फर्स्ट डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से जो है वो डिवाइड करके देख लोगे। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स मींस मैंने यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? अब ये जो एक्स स्क्वायर है, दिस इज माय फर्स्ट क्वोशिएंट, दिस एक्स स्क्वायर इज माय फर्स्ट क्वोशिएंट, राइट? और ये जो एक्स स्क्वायर है, मैं अब एक्स प्लस 1 पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई करूंगी। व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी? Ma'am, will be x square plus x cube. This will be, yes, so we'll go in an order, no? X cube plus x square. पहले इससे करेंगे तो it will be x cube then x square, right? Yes, ma'am.
नाउ अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसे कॉपी करना होता है और माइनस का साइन लगाकर इनकी वैल्यूज चेंज करनी होती है, राइट, है ना। तो Yes, द ma'am. बेटर वे इज कि हम यहीं पर ही इनकी वैल्यूज को रिवर्स करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स क्यूब था, इसे माइनस बना दे, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था, Negative x इसे cube and नेगेटिव negative x square. नेगेटिव कर देते हैं दोनों को, राइट। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर ये पॉजिटिव था इसे नेगेटिव कर देंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव था इसे भी नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. और अब इस चीज को यहाँ पर नेगेटिव साइंस के साथ कॉपी करेंगे, नेगेटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटो, दिस इज Yes, स्क्वायर ma'am. एक्स स्क्वायर। नाउ आई विल सबट्रैक्ट बोथ, देखो सेम चीजें हैं विद रिवर्स साइंस, दे विल गेट Ma'am, कैंसिल, 0 आ रहा है तुम्हारे. राइट एग्जैक्टली, दोनों का जीरो आ रहा है, दोनों ही कैंसिल ऑफ हो रहा है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं अब ये नीचे आ जाएंगी, x प्लस 1, Yes, ma'am. राइट, है ना, 1 मतलब क्वेश्चन में आएगा x square plus 1 वेरी गुड। as it is कॉपी हो जाएगा डिवाइड. एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर आप इसे मैथमेटिकली नहीं लॉजिक बिल्ड कर पाते हो तो मैं क्या कहती हूँ, दोनों को डिवाइड करके देख लो, x डिवाइडेड बाई x इज 1, 1. राइट। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब आपको x प्लस 1 से। Yes, ma'am. तो आप अगर लॉजिक से सोच पा रहे हो, वेल एंड गुड, x प्लस 1 को अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इट विल रिमेन द सेम। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ भी, इट रिमेन्स द सेम ओनली। Yes. और अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे साइंस को रिवर्स कर देंगे। आई विल मेक दिस पॉजिटिव x एज नेगेटिव x एंड दिस पॉजिटिव 1 एज नेगेटिव 1, राइट, एंड विद दिस रिवर्स्ड साइंस आई विल कॉपी हियर। यहाँ पे भी कैंसिल होके 0 आएगा. So remainder will be 0. और इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, That x plus 1 is a factor of the given polynomial. वेरी गुड, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है ना बेटा। तो Yes, इसका ma'am. मतलब दो मेथड्स थे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में उन्होंने मेथड स्टेट नहीं किया कि किस मेथड से आपको करना है, राइट। तो आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड बता रखा है कि आपको वही फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है। क्लियर बच्चे। तो अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से, लेट इट बी दिस वन। ये लॉन्ग डिवीजन से आप जो ये क्वेश्चन है इसे x प्लस 1 से डिवाइड करके मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। देखो मैंने ये थर्ड पार्ट सॉल्व किया स्क्रीन पे, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट ही पार्ट किया था। x प्लस 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट x टू द पावर 4 एंड So ma'am, x the क्यूब। error I've done is यहाँ पे मैंने x to the power 4 minus 1 ही लिख दिया सीधा. I did not multiply it to x. हाँ तो ये ध्यान रखना है ना बेटा, पूरे डिवाइजर के साथ आपको उस x क्यूब को मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 1 को x क्यूब के साथ पूरा लिखकर मल्टीप्लाई करो, so this will become x to the power 4 plus x cube, और फिर रिवर्स साइंस के साथ यहाँ पर कॉपी करना है। क्लियर। Yes, ma'am. अभी आगे का भी कराऊं मैं ये। ठीक है, करा दो. तो अभी क्या है मेरा प्राइम फोकस, अब ये फर्स्ट टर्म है, राइट। और इसको मैं क्या करती हूँ, टू बी वेरी सेफ कि गलती नहीं हो, 2x क्यूब को x से डिवाइड करके देख लेती हूँ, 2x स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो मेरा नेक्स्ट Ma'am, तो क्वेश्चन इज इसमें 2x स्क्वायर। हाँ जी बोलो। sorry for interruption. मैम जैसे कैंसिल आउट करते हैं तो 2x क्यों नहीं 2x सॉरी 2x वाली साइड पे कम क्यों नहीं होता? Why does it always reduce on the power side? मैम अच्छा। ये जो टर्म है ये है 2x क्यूब एंड हमने डिवाइड बाय x किया तो पावर साइड से कम क्यों वाले x स्क्वायर क्यों बन गए? Why doesn't be x क्यूब? मतलब 2 कम क्यों नहीं होता? अभी आप इधर यही देखो, मैंने आपको, मैं समझ गई आपका डाउट। आपके 2x क्यूब को मैंने थोड़ा इलेबोरेटेड वे में लिख दिया। 2x क्यूब मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, राइट। अब वो x से कट हुआ है तो x ही तो कैंसिल होगा, 2 को कैसे कट करूं मैं x से? गॉट इट और नॉट? तो समझ में आ गया व्हाट इज दिस 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. है ना, पक्का ना? अच्छा अभी देखो, ये 2x स्क्वायर जो है मेरा वो न्यू क्वोशिएंट है, और मुझे इससे करना क्या है, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 1 पूरे डिवाइजर से, 2x स्क्वायर, राइट बेटा। Yes, अब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x क्यूब हो जाएगा 2x फर्स्ट क्यूब टर्म, प्लस 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर, वेरी नाइस, इस टाइम आपने गलती नहीं की। और अब इसे रिवर्स साइन के साथ यहाँ कॉपी करेंगे, 2x क्यूब
-2x², राइट, है ना। और अब देखो फर्स्ट टर्म हर बार कैंसिल हो जाएगी अगर हमने सारे स्टेप्स ठीक से किए। तो एक्चुअली हम ये सब कर ही इसीलिए रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। अभी +3 -2 का आंसर क्या होता है? x². +1 होता है ना। Positive +3 x². -2 का आंसर इज +1, सो +1x², राइट, +1x², और बाकी सब चीजें ऐसे ही कॉपी हो जाएंगी नीचे, x+. +x+1, राइट बेटा। Yes, ma'am. अब जो मेरा फोकस है दैट इज दिस फर्स्ट टर्म। अब मैं 1x² को अगेन जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करूंगी। अब क्या हो जाएगा ये बताओ? x. पक्का 1 तो कम नहीं हो जाएगा ना? मैम 1 ही as in 1 एक ही x होगा. हाँ राइट, तो x ही है। तो डाउट क्लियर हो गया कि इधर से क्यों कैंसिल ऑफ होता है ना। तो अभी क्या हो गया, x मेरा जो है वो नेक्स्ट क्वोशिएंट है, राइट, और मैं इसे x+1 से मल्टीप्लाई करूंगी x को, x + 2x. x² + x, और इसे रिवर्स साइन के साथ कॉपी करूं, -x² - x, राइट बेटा। Yes, ma'am. कैंसिल ऑफ हो जाएंगी दोनों चीजें, रिमाइंडर इज 1. इसका मतलब X + 1 is not a factor of the given polynomial p of x, राइट बच्चा। Yes, ma'am. क्लियर हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से, पक्का। चलो अब मुझे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कराना है, आप इसकी प्रैक्टिस बाद में करना। मुझे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करानी है, पर उससे पहले मुझे k की वैल्यू भी करानी है। चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 k की वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले वो दिखाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में they have told us that this x - 1 is a factor of this polynomial of x. ये polynomial of x given to you, this x - 1 is already a factor of this. इसका मतलब remainder is 0. They have told us, है ना? And how do we get remainder? We get remainder when we find the 0 of this equation and then we put that value in this equation, right? Or this पूरा complete equation becomes 0. राइट बेटा, यही थी हमारी फैक्टर थ्योरम, है ना बच्चे। Yes, ma'am. इसका 0 फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अगर पूरा का पूरा इक्वेशन बिकम 0 वी से यस इट इज अ फैक्टर, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ दिस 0 हियर इन द सेकंड इक्वेशन, राइट। यही मतलब है ना लिपिका, इसका समझ में आ रहा है? हाँ मैम. तो फिर इसका मतलब 0 निकालो मुझे, x - 1 का 0 क्या होगा? +1. +1, right? So abhi when I put this into the first equation that is given to me, polynomial of x is given to me x² + x + k. So I'll write this as 1. I'll replace all the x's with 1, and remember, because this is the factor, because this is a factor of this polynomial of x, that means this should be equals to 0, right beta? So I am just putting the values of x at every step as 1, 1² + 1 + k equals 0. Got it beta? So 1² + 1 is what? 2. 2 + k equals 0. 2 will go to the right hand side and become -2. And k equals to Right. -2. So 0 - 2 is -2. That is the value for k. Got it or not beta? I got it. एक और अटेम्प्ट करें? ठीक है मैम, श्योर. कौन सा वाला करें अटेम्प्ट बताओ, आउट ऑफ द 3 that are there? थर्ड मैम. थर्ड वाला? फिर से रूट देख के डर लगा? तो मैं बेटा आपको ना इससे ये रियलाइज करा रही हूँ कि मुझे पता है ये चीजों से आपको डर लगता है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जस्ट ट्रीट देम लाइक एनी अदर नंबर्स,
सब बच्चों को डेसिमल्स लगा दो यहाँ, मिक्स फ्रैक्शन लगा दो यहाँ, या कुछ रूट्स डाल दो, तो वही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि होता कुछ भी नहीं है उसमें डिफरेंट। तो यू हैव टू फाइट योर फेयर्स, है ना। सो दिस थर्ड पार्ट हियर अगेन इट इज द सेम थिंग, नो। तो x का जो वैल्यू है वो 1 ही है, राइट। तो वही वैल्यू मुझे यहाँ पुट करना है, एंड दिस कंप्लीट इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि फैक्टर है, वी नो दिस। सो kx स्क्वायर minus root 2 into k into x plus 1 should be equals to 0. Now, wherein when I put k ka x ka value, this is p of x and this is p of 1. Actually, in this state, this should be equals to 0. यहाँ पर, right? क्योंकि जब हम इसका 0 पुट करेंगे तभी वो पूरा equals to 0 आना चाहिए। तो x की जगह पे I'll put 1 here. 1 square minus root 2 into 1 is root 2 only, plus. Now k into 1 square is k. K minus 2 plus 1. Right, equals to 0. Now how to find value of k? Just transpose things to the other side. Minus 1 you plus 1 you take there, it will become -1, and negative root 2 you take there, it will become positive. So you write it this way or you write it as root 2 minus 1, they mean the same. And this is the value of k. Got it, bache, or not? We got it. Clear with the concept? All good? Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आज के लिए वाइंड अप करेंगे।